हेलो एवरीवन। आज हम EBIT EPS एनालिसिस के सेकंड पार्ट में इंडिफरेंस पॉइंट का मीनिंग और इंडिफरेंस पॉइंट को डिटरमाइन करना सीखेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? अ लेवल ऑफ EBIT ऑन विच EPS remains the same in spite of different financial plans is known as a इंडिफरेंस पॉइंट। EBIT का एक ऐसा लेवल जो किसी भी फाइनेंशियल प्लान में इक्विटी शेयर होल्डर्स को समान अर्निंग पर शेयर दे, उसे हम इंडिफरेंस पॉइंट कहेंगे, जिसे हम हिंदी में तटस्थता बिंदु भी कहते हैं। यह एक ऐसा लेवल है जिसे ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ EBIT भी कह सकते हैं। EBIT के लेवल पर हर एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए समस्या हो जाती है कि वह किस तरीके के फाइनेंशियल प्लान को ऑप्ट करे, डेब्ट इक्विटी का मिक्स, प्रेफरेंस इक्विटी का मिक्स या डेब्ट प्रेफरेंस और इक्विटी का मिक्स, क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट में प्रत्येक स्थिति में अर्निंग पर शेयर सेम रहती है। यदि EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से अधिक है तो फिक्स चार्जेस वाले सभी सोर्सेज लाइक डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना किसी भी कंपनी के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज के इफेक्ट से अर्निंग पर शेयर हमारी इंक्रीज होती रहती है। और दूसरी तरफ यदि EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम है तो कंपनी इक्विटी शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके अपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकती है। If EBIT being more than indifference point, the use of fixed interest or preference dividend bearing securities will be more profitable. On the other hand, if EBIT is expected to be lower than the indifference point, the EPS can be increased by using the more and more equity share capital. Now, formulas for calculating the indifference point. First, when company issued equity shares and debentures both. In that case, formula is x into 1 minus t divided by n1 equal to x minus I into 1 minus t upon n2, where x equal to EBIT at indifference point, t is a tax rate, n1 is number of equity shares when only equity shares have been issued, I is interest on debt capital, and N2 number of equity shares when debt and equity shares both have been issued. Second is equity shares and preference shares. जब हमारा कॉम्बिनेशन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का हो, उस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला लगेगा x इंटू 1 माइनस टी अपॉन n1 अपॉन x इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन n3, वेयर अगेन x इज द EBIT एट इंडिफरेंस पॉइंट, t is the tax rate, PD is dividend on preference capital, and N3 number of equity shares when preference shares and equity shares both are issued. And third one is when company issued equity shares, preference shares and debentures all. In that case, formula is x into 1 minus t upon n1 equal to x minus I into 1 minus t minus PD upon n4. Again, x equivalent to EBIT at indifference point, I is interest on debt capital, PD is dividend on preference shares, and N4 is number of equity shares when debt, preference shares and equity shares all are issued. Now see one problem. The information of a company is as follows. Equity share capital 4 लाख रुपीज़ की है, जिसका पर शेयर रेट 10 रुपीज़ है। 8% डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज़ के, टोटल एसेट्स 12 lakh, sale 19 lakh, current liabilities 3 lakh. The company is planning to expand its assets by 50%. All finance for this group will come from external sources. The expansion will generate additional sales of rupees 4 lakh with a return of 25% on sales before interest and tax. The finance manager has following alternatives. Plan A, issue 10% debentures. Plan B, issue 10% debentures of half the premium amount and balance in equity share at 25% premium. And C, issue equity shares at 25% premium. आपसे कह रहा है आपको इंडिफरेंस पॉइंट बताना है किन के बीच में, प्लान ए और बी के बीच में, प्लान ए और सी के बीच में और प्लान बी और सी के बीच में। इंडिफरेंस पॉइंट मीन्स EBIT का वो लेवल जहाँ पर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्लान यूज़ करा जाए लेकिन अर्निंग पर शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। हाउ वी सॉल्व इट? फर्स्टली वी चेक व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव। हमारे पास क्या क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है 4 लाख रुपए की, 10 रुपये का एक शेयर है।
इट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 40,000। हमको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रहा है 12 लाख की। क्वेश्चन में 8% डेब्ट कैपिटल दे रहा है 3 लाख की, जिस पर हमको इंटरेस्ट पे करना है 3 लाख का 8%, दैट इज़ 24,000 रिप्रेजेंटेड बाय आई। हमसे क्वेश्चन में 50% से टोटल एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, और जो भी उसका फाइनेंस होगा वो एक्सटर्नल सोर्सेज से होगा, जिसके लिए हमारे पास नीचे इन्फॉर्मेशन है प्लान ए, बी और सी में। ए में हमें 10% डिबेंचर्स इशू करने हैं, बी में आधी कैपिटल के डिबेंचर्स और हाफ कैपिटल के इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्लान सी में हमें सारे के सारे एसेट को फाइनेंस करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज़ करना है। तो फर्स्टली प्लान ए, जहाँ पर हमको 10% डेब्ट कैपिटल इशू करनी है कंप्लीट 6 लाख रुपीज़ की। 6 लाख रुपीज़ की कंप्लीट डेब्ट कैपिटल पर हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000। हम यहाँ पर पुरानी डेब्ट कैपिटल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके इंटरेस्ट को I1 एज्यूम करेंगे, और नई डेब्ट कैपिटल जो हमारे पास नई इंट्रोड्यूस हुई है उसके लिए हम इंटरेस्ट को I2 रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास I1 हो जाएगा 24,000 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, और I2 जो हमारी नई इंट्रोड्यूस हुई है उसका इंटरेस्ट हो गया 60,000, और N नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे EPS इक्वल टू x माइनस आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन। x EBIT है, माइनस I इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 1 माइनस टी इज़ अ टैक्स रेट, एन इज़ अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, x हमारा एज इट इज़ रहेगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I, दैट मीन्स 24,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 84,000। 1 माइनस 0.50, क्वेश्चन में 50% का टैक्स दे रहा था, डिवाइडेड बाय 40,000। ये हमारा प्लान ए आ गया, हमने इसको शो कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ प्लान बी, प्लान बी के अकॉर्डिंगली हमको हाफ डेब्ट कैपिटल इशू करनी है और हाफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं एट द रेट ऑफ 25% प्रीमियम। 6 लाख की कैपिटल में से 3 लाख के डेब्ट कैपिटल इशू होगी और 3 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू होंगे। 3 लाख की डेब्ट कैपिटल इशू होगी, दैट मीन्स 10% डेब्ट कैपिटल, जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट 30,000 हो जाएगा। अगेन हमारी सिचुएशन है कि ऑलरेडी हमारी कंपनी में 8% डिबेंचर्स 3 लाख के एग्जिस्ट हो रहे थे, और नए डिबेंचर्स हमारे 10% के इंट्रोड्यूस हुए 3 लाख की कैपिटल से। तो हमारे पास I1 था 24,000, नया इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 3 लाख का 10%, दैट इज़ 30,000। टोटल आई हो गया 24,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 54,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी चेंजेस हो जाएंगे। रेट पर इक्विटी शेयर हमारा 10 रुपये था, जिसमें हमारे को 25% प्रीमियम से नए इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। तो 10 रुपये का 25% हमारा 2.5 हुआ। इट मीन्स एक शेयर हमारा कितने का हुआ, 12 रुपये 50 पैसे का। 3 लाख के हमको नंबर शेयर्स इशू करने हैं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हुए, 3 लाख अपॉन 12.5, दैट मीन्स 24,000। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर N1 दे रहा था 40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नई कैपिटल को एक्सपेंड करने के लिए उसने नए इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं कितने, 24,000। हमारे पास टोटल N हो गया कितना, N1 प्लस N2, इट मीन्स 40,000 प्लस 24,000 इक्वल टू 64,000। तो प्लान बी के अंदर हमारे डेब्ट कैपिटल भी इंक्रीज हुई है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी इंक्रीज हुए हैं। हमारी डेब्ट कैपिटल पे टोटल इंटरेस्ट हो गया 54,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल हो गए 64,000। नाउ यूज़ द फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला यूज़ करना है अर्निंग पर शेयर इक्वल टू x माइनस आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन। दैट मीन्स वैल्यूज पुट करिए, x माइनस 54,000 इंटू 1 माइनस 0.50 अपॉन 64,000। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ सी, प्लान सी के अकॉर्डिंगली 6 लाख की जो कैपिटल एक्सटेंड हुई थी फाइनेंशियल एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो कैपिटल में हमारे सारे के सारे इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं 25% प्रीमियम से। 25% प्रीमियम इन सेंस 10 रुपये का एक शेयर था, जिसके ऊपर 25% प्रीमियम से 2.5 रुपये इंक्रीज हो गए। दैट मीन्स हमारा शेयर 12.5 रुपीज़ का हो गया, 12 रुपये 50 पैसे का। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 रुपीज़ 50 पैसा।
Resulting number of equity shares are 48,000. ऑलरेडी हमारी कंसर्न में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे? 40,000 ऑलरेडी थे N1 और नए इक्विटी शेयर्स आ गए 48,000. तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 88,000. नाउ अगेन यूज द फॉर्मूला that is x minus I into 1 minus t upon number of equity shares, जिसमें इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. जो ओरिजिनल डेप्ट कैपिटल थी वो हमारी एज इट इज़ बनी हुई है. दैट मीन्स 8% डेप्ट कैपिटल ऑफ 3 लाख. उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया 24,000. नाउ पुट द वैल्यूज. x इज इक्वलेंट टू EBIT माइनस 24,000 इंटू 1 माइनस 0.50 अपॉन 88,000. अब हमको नीचे कॉम्बिनेशन दे रहा था. सबसे पहले प्लान ए और बी, इन दोनों के बीच में हमको इंडिफरेंस पॉइंट को डिटरमाइन करना है. हम दोनों इक्वेशंस को पैरेलल रखेंगे. हमारी प्लान ए की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने उसको लिखा x माइनस 84,000 इंटू 1 माइनस 0.50 अपॉन 40,000. और बी हमारी सेकेंड इक्वेशन थी इक्वल टू x माइनस 54,000 इंटू 1 माइनस 0.50 अपॉन 64,000. सॉल्व कर लीजिए. हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 84,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इक्वल टू x माइनस 54,000 डिवाइडेड बाई 64,000. अब 40,000 और 64,000 का प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लीजिए. जब हम इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे कितना आएगा? 5:8. 5:8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8 इंटू एक्स माइनस 84,000 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 54,000. और सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करके हमारा एट लास्ट x आ जाएगा कितना? 1,34,000. x इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो प्लान ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है x कितना? 1,34,000. नाउ नेक्स्ट हमसे कह रहा था प्लान ए एंड सी का इंडिफरेंस पॉइंट डिटरमाइन करिए. अब ए और सी के लिए हम ए और सी के इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे. प्लान ए की इक्वेशन थी x माइनस 84,000 इंटू 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाई 40,000 और सी की इक्वेशन थी x माइनस 24,000 इंटू 1 माइनस टी अपॉन 88,000. अगेन इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करेंगे x माइनस 84,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इक्वल टू x माइनस 24,000 डिवाइडेड बाई 88,000. अगेन 40,000 और 88,000 का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए. 5:11. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन आ जाएगी 11 इंटू एक्स माइनस 84,000 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 24,000. सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके एट लास्ट हमको पता चल जाएगा हमारी एक्स कितनी आ रही है? 1,34,000. हमने देखा यहाँ पर हमारी EBIT में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जबकि फाइनेंशियल प्लान हमारा डिफरेंट था. नेक्स्ट प्लान बी एंड सी. प्लान बी एंड सी इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे. x माइनस 54,000 इंटू 1 माइनस 50% अपॉन 64,000 इक्वल टू x माइनस 24,000 इंटू 1 माइनस 50% अपॉन 88,000. अगेन इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करके आपके पास 64,000 अपॉन और 88,000 आएगा. इन दोनों का फिर से रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए. ये रेशियो कितना आ जाएगा? 8:11. और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस 54,000 इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 24,000. अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करेंगे हमारे पास EBIT आ जाएगी अगेन 1,34,000. तो हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लान हमारा किसी भी तरीके का था, लेकिन उसके EBIT में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं हुए. हमको यहाँ पर इंडिफरेंस पॉइंट बताना है, वो पॉइंट कि EBIT का लेवल जो भी हो, लेकिन हमारे EPS में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. या EBIT के लेवल के बाद हमारा कंसर्न किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्लान यूज़ करें, कितनी भी डेब्ट कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, या केवल इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ करें, लेकिन उसके अर्निंग पर शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. इसके लिए हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे और इसे प्रूफ करेंगे कि हमारे EBIT के हर लेवल पर हमारा EPS कैसा है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, चाहे हम जितने भी फाइनेंशियल प्लान्स में चेंजेस कर लें. कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी.
तीनों प्लान का EBIT रिमेन सेम है 1,34,000। इंटरेस्ट प्लान ए का 84,000, प्लान बी 54,000 एंड प्लान सी 24,000। प्लान ए में ओरिजिनल डेप्ट कैपिटल के साथ साथ हमारी नई डेप्ट कैपिटल इशू हुई थी 6 लाख रुपीज़ की। ओरिजिनल डेप्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट 24,000 था और 6 लाख पर डेप्ट कैपिटल का इंटरेस्ट 10% था। दैट मीन्स 60,000 प्लस 24,000 इट मीन्स 84,000। प्लान बी में ओरिजिनल डेप्ट कैपिटल हमारी 3 लाख की थी 8% से, दैट मीन्स 24,000 और नई डेप्ट कैपिटल हमारी 3 लाख की इशू हुई थी 10% वाली 30,000। तो 30,000 प्लस 24,000 दैट मीन्स 54,000। एंड प्लान सी में हमने कोई भी नई डेप्ट कैपिटल इशू नहीं करी थी। पुरानी जो भी हमारी डेप्ट कैपिटल थी वो 3 लाख की थी जिसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट था, दैट मीन्स 24,000। हमने माइनस किया, हमारे पास कितने आ गया, EBT आ गया 50,000, 80,000 एंड 1,10,000। नाउ माइनस टैक्स 50%, 25,000, 40,000 एंड 55,000। टैक्स रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स वॉट एवर अमाउंट वी हैव दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। अब हम अर्निंग आफ्टर टैक्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे अर्निंग पर शेयर, लेकिन उसके लिए हमको पता होना चाहिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लान ए में हमारे पास 40,000 थे, प्लान बी में हमारे पास ओरिजिनल 40,000 थे लेकिन हमने नए इक्विटी शेयर्स भी इशू करे थे, इसलिए टोटल इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हो गए 64,000। और प्लान सी में हमारे पास ऑलरेडी 40,000 के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे और हमने 6 लाख की जो कैपिटल एक्सपेंड करी थी उसके अंदर सारे के सारे 25% प्रीमियम से इक्विटी शेयर्स इशू करे, जिससे हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया 88,000। नाउ फाइंड आउट अर्निंग पर शेयर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Earning after tax is 25,000 for plan A and number of equity share 40,000 and plan B 40,000 upon 64,000 and plan C 55,000 upon 88,000 और तीनों ही प्लान्स में हमारा अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है 0.625। इट मीन्स हमारी EBIT रिमेन सेम है और डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स यूज़ करने के बाद भी हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है रिमेन सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि वो कौन से फाइनेंशियल प्लान को ऑप्ट करे, क्योंकि सभी फाइनेंशियल प्लान से उसको एक जैसा ही अर्निंग पर शेयर रिसीव हो रहा होता है और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।